Good morning, everyone. Welcome back to our YouTube channel, Chemistry Winners. So, adding another video to our 2024 series, JEE Mains 2024 1st February evening shift series. Okay, so let us start solving this paper. First question, in the given reaction, identify A and B. अब इसमें now, if you can see, it is reduction, Landler reduction, sodium liquid ammonia, and again reduction is happening. So you have to identify A and B. Now A cannot be pentane, means A and C are directly gone. So that means out of B and D we have to find either B or D. Now in both option A is same, so one gives you cis, one gives you trans. Now sodium and liquid ammonia, it gives you a trans product. This you have to remember only. Trans means D is my right option. So need not to go for A. बच्चों this is the trick. This is the trick जो आपको अप्लाई करनी है. यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में. आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाएगा इस आंसर का. तो let us check. B should be my right answer. Yes, B is my right answer because it gives you trans-but-2-ene. Next है solubility of calcium phosphate in water is W gram per 100 ml at 25 degree. Solubility product at 25 degree will be approximately. So first of all, write the formula of calcium phosphate. Ca3PO4 twice. So it gives you 3Ca2 positive plus 2 PO4 3 negative. So Ksp becomes equal to 3 raised to power 3, 2 raised to power 2, S raised to power 5. That means 108 S raised to power 5. Now, what we can say, molarity N upon V into 1000, because solubility and molarity they are same. So given mass upon molecular mass into 1000 upon 100, so it will be equal to 10 gm upon mm. Now if you see carefully here, 108 s raised to power 5, so I can take it as Ksp is equal to 108 10 raised to power 5, right? So अब 108 को मैं approximately 100 मान लूं तो 10 raised to power 5 7. So that means now 10 raised to power 7 is okay, but raised to power 3 not okay. 3 5 not my answer. 7 and 5 this is my right answer. So this is how you can solve it. So बच्चों आपको KSP निकालना है, वहां से solubility and molarity they are same. थोड़ा सा आप अरेंज कर लो. इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने इसको कर रखा है ऑलरेडी. So C should be my right answer, which is my right answer. अगर आप ट्रिक में जाते तब भी आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो एलिमिनेट हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं. SiO2 and GeO2 are acidic bile. SNO and PbO are amphoteric in nature. Both statements they are correct statements. First statement is true क्योंकि tin and lead दोनों amphoteric होते हैं. Allotropic form of carbon are due to property of catenation and p pi d pi. कार्बन कभी भी d pi बॉन्ड नहीं बनाता. Why? कार्बन इज 1s2 2s2 2p2. कार्बन के पास 2d 3d नहीं होता. मतलब ये ट्रू है, ये तुम्हारी क्या है, फॉल्स आ जाती है. सो ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 is true but 2 is false, which is the right answer. Next question, question number 4 I guess. The set of meta-directing functional groups from the following statement. CnNH2, NH2 is ortho and para, मतलब ये नहीं है. CnCHO, NHCO, CH3, NHCO, CH3 is again ortho para. NO2 and यहाँ पे फिर से NH2 आ गया. देखो यहाँ पे NH2 है, NH2 है, ये है. यहाँ पे NO2, CHO, SO3, HCOR, मतलब D मेरा ऑप्शन है. बच्चों सीरीज होती है एक ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, प्लस m प्लस i माइनस आएगी. यू हैव टू रिमेंबर दैट सीरीज ओनली. सो माय करेक्ट ऑप्शन शुड बी D, which is right answer. Next question, question number 5. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये सारा. NH3 6
CONH3 पॉजिटिव एंड COF6 3 नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली नोन एज। अब जो ये है ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ये होता है आपका वीक फील्ड लाइगेंड। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड, स्पिन फ्री, आउटर ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा, यहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा, राइट। तो मतलब यहां पे आएगा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स एक ही है, और ये क्या करेगा आपका, ये आएगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है स्पिन पेयर्ड। अब यहां पे इनर ऑर्बिटल तो ठीक है लेकिन स्पिन पेयर्ड ठीक नहीं है, यहां पे स्पिन फ्री सही नहीं है, आउटर सही नहीं है, हिंट है आपके। तो दिस इज हाउ यू कैन पिक द राइट आंसर। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा वीक फील्ड है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका ट्रिक है थोड़ा सा। सो बी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांजिशन मेटल हैविंग थर्ड हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 25 4s2 3d5 26 4s2 3d6 SCTI VCR 24 23। so 4s1 3d5 4s2 3d3। so we need to find the third। अगर आप मैग्नीज को देखो तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा 3d5। अब जब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है यहां से तो 3d5 इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट मींस यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो मैग्नीज शुड बी माय राइट आंसर। यस, इट इज आवर राइट आंसर डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ये बच्चों उस पोर्शन में से है जो सब लोग पढ़ते नहीं है। कौन सा पोर्शन, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। डीडीटी जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है, ओके। सो सी शुड बी फोर्थ, चेक कर लेते हैं C4 कहीं है क्या, सॉरी C1 C4 ये नहीं है, C3 C2 नहीं है, नहीं है मतलब B इज माई राइट आंसर। देखो एक ही चीज आपको, अब मैं हर एक वीडियो में वही बात बोलता हूं कि आपको कोई एक चीज पिक करनी है, एक या 2 चीज पिक करो जो आपको श्योर हो, देन मैच करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आ गया लिस्ट 1 लिस्ट 2 को रिएक्शंस के साथ जोड़ना है आपको। अब जो ये है आपका, ये देता है आपको सल्फरडिहाइड, ये आपको देता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपको देता है बेंजीन। मतलब A3B1 A3B1, A4 नहीं है, A3 है, A4 नहीं है, A3 है, B1, अच्छा देखना ही नहीं, B और D में जाके था B1, मतलब B ही मेरा ऑप्शन है, यहाँ पे B4 है। तो 2 चीजों ने आपको आंसर दे दिया, A3B1, B should be my right answer, which is my right answer। Next question, question number 9। Dimethyl glyoxime forms a 6-membered covalent chelate when treated with NiCl2 solution in the presence of NH4OH। ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, क्यों गलत लग रही है आपको बताते हैं। जो आपका डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम होता है वो कुछ ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड N, CH3 C डबल बॉन्ड N, यहां से बनेगा निकल, यहां से बनेगा O नेगेटिव N N, और ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहां पे रिंग बनता है वो होता है 5 मेंबर का। यहां पे लगा देते हैं, सॉरी, OH O नेगेटिव यहां पे बॉन्ड, O नेगेटिव यहां पे बॉन्ड। तो जो यहां पे रिंग बन रहा है 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5, यहां पे OH आएगा 5। तो जो चिलेशन का रिंग है आपका यहां से जो बन रहा है, क्योंकि ये वाला रिंग चिलेट रिंग नहीं है, इट इज नॉट चिलेटिंग रिंग, इट इज द चिलेटिंग रिंग, तो ये बना 5 मेंबर रिंग। दैट मींस आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी क्या मिली, आपको फॉल्स मिली। प्रसियन ब्लू कलर इज
Prussian blue color precipitates contain +2+3, ये ट्रू है, ये हम क्लास नोट्स में भी लिखते हैं. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स लेकिन 2 इज ट्रू. सो ऑप्शन ए शुड बी माय राइट आंसर. बाकी चेक कर लेते हैं. यस, इट इज आवर राइट आंसर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. C2H5Br अल्कोहलिक QH. अल्कोहलिक QH क्या देता है? एलिमिनेशन. सो C2H4 यहाँ पे क्या बनेगा? CCBr. यहाँ पे क्या बनेगा? CN. यहाँ पे क्या बनेगा? COH. अच्छा, एक्सेसिव है तो मतलब ये बनेगा डबल बॉन्ड O. अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड. जहां पे हमने लिखे थे ओम्स गैप्स, याद होगा, सक्सीनिक एसिड याद होगा. ओम्स गैप्स, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, है ना. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट हियर. हाँ, रिएक्शन थोड़ा सा मैंने वो मिस कर गया एक चीज, क्योंकि जब यहाँ पे ये आएगा CN तो हाइड्रोलिसिस साइनाइड का होता है, तो ये ऐसे बनाएगा COOH. वो मैं गलती से इन कार्बन का मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया था. एक्चुअली साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जो है वो हमें देता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो एमाइड दे देता है. सो दैट इज सक्सीनिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Lessine test is used for detection of nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम ही नहीं है इसको करने का, सोचने का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज. तो SBNBIP. अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप 15 दे रखा है. ग्रुप 15 क्या होता है? मतलब न, प, अस, सब, बी. टॉप टू बॉटम जाओगे तो +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा है +3 से. दैट मीन्स जो सबसे नीचे है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर सकता है. और रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करनी है, मतलब BiH3 इज माय राइट आंसर. आप उसमें कुछ सोचने की आपको दिक्कत ही नहीं है, जरूरी नहीं है. यस, इट इज आवर राइट आंसर. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 आई गेस, 12 या 13. In aqueous solution, Cr2 positive is reducing while Mn3 positive is oxidizing in nature. अब ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये लिख के देखनी पड़ेगी, मुझे ट्रू लग रही है. ओके, सेकंड क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फार फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, Cr2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? 3d4. Mn3 प्लस का क्या हो गया? 3d5. यस, इन एक्वस सोल्यूशन ये रिडक्शन करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा. ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब असर्शन आपका ट्रू हो गया. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फील्ड, मतलब ये भी ट्रू है और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है मेरे हिसाब से, है ना. यस, क्योंकि 3d5 है, ये अब डोनेट नहीं करेगा, गेन करेगा. दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो आई गेस ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा सही होना चाहिए. दैट इज द राइट आंसर. So next question. The functional group that shows negative resonance. Negative resonance कौन देता है? जो -M देता है, COOH. सेकंड नंबर पे आता है इसका, जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of radial nodes for 3p orbital is n-l-1. तो 3 - 1 - 1 मतलब कितना बचा आपका? 1. राइट आंसर. अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों. अगर आपको रेडियल नोड्स का फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप बहुत पीछे हो फिर अभी. क्वेश्चन नंबर 16. विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या तो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है या फिर वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर. 1 2 3 4 अल्कोहल है, यही होना चाहिए आंसर. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 4. अब इसमें हर जगह 4 कार्बन की चेन है, मतलब मेमोरी डेंसिटी बेस्ड तो नहीं है. अब क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं. क्या एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? नहीं. क्या ईथर बनाते हैं? नहीं. क्या अल्कोहल बनाते हैं? यस. सो आंसर नंबर ए शुड बी माय राइट आंसर, विच इज माय करेक्ट आंसर. सो 16 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं अभी तक. आसान थे क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं थे. ज्यादातर मेमोरी बेस्ड है या ट्रिक बेस्ड है. ओके,
ए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, गलत बात है, ये फॉल्स है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो नहीं होती, उसके बीच में होती है। नेक्स्ट, पाई एंटी बॉन्डिंग, 1 सेकेंड, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियर, ये ट्रू है। मतलब स्टेटमेंट 1 जो आपकी वो फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। 1 फॉल्स, सेकंड ट्रू, वो स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। सो यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट। वो इन बिटवीन होती है बच्चों, ऊपर और नीचे नहीं होती, ध्यान रखना। बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन डी एंड पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल पी में तो होते हैं, क्या डी में भी होते हैं? फॉल्स है। नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर इलेक्ट्रॉन देन दी मेटल्स, ये ट्रू है आपकी। तो मतलब 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। 1 फॉल्स, 2 ट्रू, राइट आंसर। थोड़ा सा ये ट्रिक खेला था एनटीए ने, बच्चों को यहां पे लगा कि मेटल एंड नॉन मेटल पी की बात हो रही है और सिर्फ मेटल डी की बात हो रही है। तो मेरे ही कुछ बच्चों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, याद है मुझे। सॉरी। Which of the following compounds show color due to dt transitions? अब यहां पे जो होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफर, यहां पे भी चार्ज ट्रांसफर, यहां चार्ज ट्रांसफर। इसका मुझे पता नहीं है, तो मतलब dt यहीं पे होगा। चेक कर लेते हैं, यही होना चाहिए dd, और कहां जाएगा? क्योंकि कॉपर सल्फेट, कॉपर बन जाएगा +2, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है which can show dt transition. Yes, that is our right answer. Very easy. Question number 20. Select the compound from the following which show intramolecular hydrogen bonding. Same question JEE 2025 में रिपीट हुआ है और इसका आंसर भी यही था। इंट्रामोलिकुलर तो ये दिखाया, वाटर दिखा था इंटरमोलिकुलर, अल्कोहल इंटरमोलिकुलर, अमोनिया इंटरमोलिकुलर। सिर्फ यही है जो इंट्रामोलिकुलर दिखाएगा यहां से, यहां से। सो रिपीटेड क्वेश्चन है JEE 2025 का। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. The number of tripeptides formed by 3 different amino acids using each amino acid once is okay. अब ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखो आपके पास मान लो 3 अमाइनो एसिड हैं A, B, C, तीनों की ट्राइपेप्टाइड बनानी है और तीनों में जो आपका अमाइनो एसिड है वो अलग होना चाहिए। तो पहली मैं क्या बनाऊंगा? ABC, दूसरी में क्या बनाऊंगा? ACB, आगे मैं क्या बनाऊंगा? BAC, BCA, CBA एंड CAB। उसके अलावा कोई और अरेंजमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो मेरे पास तो आंसर इसका आया है 6। अब ट्राइपेप्टाइड बन रहे हैं, बिल्कुल बन रही है, सारे के सारे ट्राइपेप्टाइड है। सब में तीनों डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ABC एंड ACB अरेंजमेंट अलग है, BAC BCA अलग है, CBA CAB अलग है। तो ये चीज थी आपकी। तो राइट आंसर जो है वो 6 होना चाहिए, बाकी चेक करेंगे। Yes, it is our correct answer. So, next question: mass of ethylene glycol to be added to 18.6 kilogram of water to protect the freezing point at -24 degree Celsius is this much kilogram. Okay, MB निकालना है आपको, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से आया हुआ है, सीधा सीधा आप उसका MB निकाल लोगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KFM। अब क्योंकि ये 1 के इक्वल है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ये 1 के इक्वल हो गया, 1 इंटू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 अपॉन MA इंटू 1000, सब कुछ इसमें कन्वर्ट कर लो। सो डेल्टा TF हमारा कितना बन जाता है? -24 इज इक्वल टू KF की वैल्यू पता नहीं क्या गिवन है, स्टैंडर्ड है तब तो हम वही यूज कर लेंगे। KF है, हाँ 1.86 स्टैंडर्ड ही गिवन है और ये है 62, वो है 18.6। चलो ठीक है, 1.86 इंटू गिवन मास फाइंड आउट करना है अपॉन 62 इंटू 1 अपॉन MA है 18.6 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,600 इंटू 1000। अब गिवन मास इज इक्वल टू 24 इंटू 18,600 इंटू 62 इंटू नहीं, इंटू नहीं आएगा, 62 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 1000। अब इन सब को सॉल्व करने के लिए मैं लेता हूं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, 1 मिनट रुकिए मैं आपको अभी बताता हूं। 24 इंटू 18,600 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1.86, तो मेरे पास आया है एग्जैक्टली 14,880। अब मास किसमें निकालना है? देखो ध्यान से, मास आपको निकालना है केजी में। बच्चे जो नॉर्मल गलती करते हैं वो यूनिट नहीं देखते हैं। अब केजी में निकालने का मतलब क्या हो गया कि 14,880 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा? 14.88, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 15। सही आंसर निकाल के भी गलत आंसर आप निकाल सकते हो अगर आपने राउंड ऑफ नहीं किया तो मेरा जो सही आंसर है दैट शुड बी 15। बच्चों एनसीईआरटी के एग्जांपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से निकाल सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है। मेरे सारे वीडियोस चेक कर लो, आपको बार बार दिखेगा। 1 2 3 4 यहां पे है। अब इसके 6 बनते हैं यार टोटल। यहां पे क्लोरीन आ सकता है, यहां क्लोरीन आ सकता है, यहां क्लोरीन आ सकता है और यहां क्लोरीन आ सकता है। अब इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, नहीं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें यहां से बनेगा 1, यहां से बनेंगे 2, यहां से बनेंगे 2, यहां से बनेगा 1, तो टोटल हमारे कितने आ गए? 1 मिनट रुको, बना ही लेते हैं इसको। आंसर इसका 6 है, बट बना के बताएंगे आपको। स्मार्ट बोर्ड पे आ जाओ, यहां तो फिर अच्छे से लिखा नहीं जाता। सी 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 सी, ये मिथाइल है, मैं यहां पे क्लोरीन लगाता हूं, सी, मैं एक क्लोरीन यहां पे लगा देता हूं, सी, मैं क्लोरीन यहां पे लगा देता हूं और एक मैं क्लोरीन यहां पे लगा देता हूं, सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मतलब यहां से 1 निकलेगा, ये वाला, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, 2 निकलेंगे, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, 2 निकलेंगे, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, 1 निकलेगा। 2 2 4 और 1 6, मैंने आपको यही बोला था क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए, 6 है इसका आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड। ओके, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो टाइम गिवन है और टोटल प्रेशर गिवन है। चलो पहले तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे ही चलते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारे पास, A gives 2B plus C, तो मैं सीधा बना लेता हूं 0.1 माइनस एक्स, 2x एंड x, तो PT मेरा कितना बनेगा? 0.1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, तो दैट इज इक्वल टू 0.1 प्लस 2x। सही है, और इसकी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.28। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि x की वैल्यू आएगी मेरे पास 0.1, 0.28, 0.18, 0.18 डिवाइडेड बाय 2, 0.09, बस हो गया काम। अब k इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज टाइम 115, हो गया काम, बस इतना ही निकालना था। 115 115 इंटू 2.303 लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 0.1 अपॉन 0.01 माइनस 0.09, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.1 माइनस 0.09। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर लेता हूँ सारी की सारी वैल्यूज को, तो के जो है वो मेरे पास आएगा
ये बन जाएगा 0.001, दैट मीन्स log 10 1 हो गया, 2.303 115, तो ये तो हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाय 115, 0.0020026, मतलब इसको मैं 2 ले सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ। आंसर पता नहीं कैसे लिखना है, -2 में ही लिखना है इसको। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आया वो आया 2। सही है, देख लेते हैं एक बार फिर से कुछ गलत ना हुआ हो। ओके, ए ने दिया ये, पीटी निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गई और एक्स की वैल्यू पुट कर दी। हाँ सही है, इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से मिक्स किया हुआ है। वो शुड बी माय राइट आंसर। यस, 2 ही मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन K is equal to 10 डेल्टा G नॉट फॉर द सेम रिएक्शन। बहुत आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे जेई में ही रिपीट हुआ है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log of K into 2.303, तो इट इज इक्वल टू माइनस 8.314 into 300 into 2.303 log 10 log K कितना हो जाएगा? K is equal to 10 log 10 1 सॉरी, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 5744.14, अप्रोक्सीमेटली 57 में ले सकता हूं अगर वो किलो जूल में है तो। अच्छा हाँ, 10⁻⁻1 सही है, 57 ही मेरा आंसर होना चाहिए। तो बच्चों आसान था, बेसिक सा फॉर्मूला था जो इसमें यूज करना है। बिल्कुल राइट आंसर, सही आंसर आया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of electricity in Coulomb's law required for the oxidation of 1 mole of H2O2। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या देता है, तो हमें H2O ने क्या दिया, हमें दिया O2। अब ऑक्सीजन का N फैक्टर जो होता है वो 4 होता है। यहां पे 1 मोल ऑफ वाटर है, ये ऐसे मिलता है 2H2O gives O2, यहां N फैक्टर होता है 4। अब यहां हमें दे रहा है 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, हाफ O2, दैट मींस N फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब 2 इंटू 96500 कर लो, कितना बन जाएगा 193 कुछ होता है ये 193, मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, 96500 इंटू 2 193,000, 10⁻⁵ में कन्वर्ट करके लिखना है, तो ये बन जाएगा 1.93000 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो ये है बच्चों, आंसर 2 ही आना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। तो चेक कर लेते हैं कुछ गलत ना हो। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 2 मोल से हमें 1 मोल ऑक्सीजन मिलता है ना, इसलिए यहां पे हम 1 मोल ही ले रहे हैं। फ्रॉम फॉलोइंग जल्डाहल मेथड, sorry, 1 gram of organic compound released ammonia, 10 ml 2 मोलर H2SO4, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। बहुत आसान है, आ जाओ जरा स्मार्ट बोर्ड पे। कैसे करेंगे इसको, देखो H2SO4 प्लस अमोनिया हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं NH4 ट्वाइस SO4। अब मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितने बन जाएंगे, 10 इंटू 2 दैट इज 20, एंड अमोनिया कितने बनेंगे 20 इंटू 2, क्योंकि इसको बैलेंस करना होता है। ये आ गए 40, ये आ गए 20, राइट। अब नाइट्रोजन के मोल्स कितने बनेंगे, नाइट्रोजन के मोल्स मिलेंगे 40/1000 इंटू 14 इंटू 100, मेरे हिसाब से तो ये बन जाएगा। तो ये हो गया कैंसल, ये कैंसल, 14 4 56% राउंड ऑफ करके आया। अब जिनको जल्डाहल मेथड की कैलकुलेशन पता उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और जिनको नहीं पता तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 56% है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूले नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप कैसे आंसर्स को सही निकाल सकते हो। तो 56 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन H2OK, ओके ये गिवन है। इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द अबव रिएक्शन इज गिवन एज K, पहले तो
के मतलब हमें निकालना है मेरे हिसाब से यहाँ पे नर-नस्ट इक्वेशन लगेगी, इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले तो स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे लगे नर-नस्ट इक्वेशन। नर-नस्ट इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। अब देखेंगे प्रेशर है कि आगे, अच्छा K है शायद उसमें गिवन, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो लॉग ऑफ K लगा देंगे इसमें। अब इक्विलिब्रियम है तो E तो हो गया 0, दैट मींस E नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ K। ओके, अब E नॉट की वैल्यू देखते हैं क्या है, प्लस 1.51 प्लस 49, तो मतलब E नॉट मेरा कितना आएगा 1.51 माइनस 0.49, तो ये बन जाएगा 2। सही है, n फैक्टर निकालना पड़ेगा यार इसका। इक्वेशन लिखते हैं जरा, MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस H2C2। ओके, अच्छा ये सीधा ही निकल जाएगा, 4 2 8, यहाँ पे आ गया प्लस 7, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 प्लस 4, यहाँ पे आएगा -2, सॉरी +2, मतलब ये चेंज हुआ +2 में, तो यहाँ पे चेंज है 5 का, यहाँ पे 2 to 4 चेंज है 2 का, तो 5 into 2 कितना हो गया 10, मतलब यहाँ पे n फैक्टर 10 है। ट्राई करेंगे n फैक्टर 10 से, सही आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही, तो 2। ओके, तो इसका मतलब ये बन जाएगी, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 10 लॉग ऑफ K। ओके, तो दैट मीन्स log of K is equal to 2 into 10 divided by 0.059। अब K is equal to anti-log 2 into 10 upon 0.059। अब बच्चों मुझे लेना पड़ेगा इसका एंटी-लॉग, वो मैं लूंगा कैलकुलेटर से। सो K comes out to be equal to 2 into 10 20 by, ओके, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10⁻338। अब निकालना क्या है, ओके 10⁻x निकालना है, तो मतलब x की वैल्यू आपके पास आई है 338। चेक कर लेते हैं सही है गलत है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जेडब्ल्यू में। हाँ एकदम सही किया आपने, तो माय आंसर शुड बी 338। सो 338 विच इज राइट आंसर। सो यहाँ पे बहुत अच्छा यूज किया इन्होंने हर एक चीज का, बढ़िया क्वेश्चन था इसके हिसाब से। नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस। ये नहीं देगा, ये अमाइन नहीं है, ये है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, तो 1 2 3 4 5 इजिली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको हिंसबर्ग की पता है, देखो हमारा सही आंसर आया। अगर आपको हिंसबर्ग रिएक्शन पता है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml CO2 and 50 ml of water. Total number of carbon and hydrogen atoms in the given hydrocarbon is। आ जाओ जरा, अब जो हाइड्रोकार्बन का बर्निंग है उसका हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, CxHy plus x upon y by 4 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2O। सही है, गिवन क्या है, 10 ml हाइड्रोकार्बन ने दिया 40 ml CO2। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको 10 ml मान लूं तो ये कितना आएगा 10x, दैट मींस 10x इज इक्वल टू 40। ये कितना मिला मुझे, 40 ml मिला है, CO2 40 ml है ना, देखो क्वेश्चन में CO2 40 ml है, तो मींस x मेरा कितना आ गया 4। अब जो वाटर है मेरा वो मुझे 50 ml मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दैट मींस ये हाफ होगा, y बाई 2 है, 10 का हाफ कितना हो गया 5, मतलब 5 बाई इज इक्वल टू 50,
So y is equal to 10. So निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं. कितने आए? मतलब ये हमारा जो है वो कंपाउंड बनेगा C4H10. तो मतलब 14 should be the answer. So 14 should be the answer. Yes, it is the right answer. So बच्चों, this was all about JEE Mains 2024 1st February evening shift. तो जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था JEE का 2024 का, वो यहाँ पे पूरा होता है. नेक्स्ट अटेम्प्ट की सीरीज और इसी में ऐड करके डालेंगे, आपको दे देंगे. So if you have any query, so kindly contact on the number mentioned there. So thank you very much once again for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.